across the nations, across the globe. We are the stars of David, and we always unite in the spirit because we are far from each other. We are in Pakistan and we are in England, UK. But it is the Holy Spirit, the Spirit of God, that connects us, and so that we, although can be far away, but we are united in the Spirit. So, once again, I welcome you today, the 8th of August, the month that is very important in Pakistan. As you see around, there are celebrations and people are excited to celebrate the 14th of August. Well, it is our nation. I was born in Quetta. I was born in Pakistan. I'm called a Pakistani, and although I'm a Britisher as well, and I hold dual nationality, but I thank God that He chose me to be born in that nation. And whatever He has plans for me, I accept them. And I thank Him for my life all through these years and all the days that I have left till the coming of Jesus. Whether I sleep, I know I will rise in Him, or I stay alive, I know I will be taken because I'm getting ready for the first flight. And together we are blowing a trumpet of praise to call people to know Jesus. And who am I calling? I am calling Christians because the Christians do not know Christ. They are called by His name, but they do not know Christ. And the people that really sadden the heart of God are the shepherds, the pastors, the bishops across the world, and the people who are chosen as leaders, or they themselves choose to be in the lead, but they are not leading the people to green pastures so that they can stay, so that they may be able to say that even though if I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. Christians are fearful. They are fearful of tomorrow. They are fearful of diseases. They are fearful of death. I'm not saying that you should not go to a hospital if you are ill. What I'm saying is, do not be afraid, because there is one who is Yahweh Rapha. His name is Jesus. There's healing in His name. His blood is precious, and it has the power to heal us. Even after 2000 plus years, it still has the power to heal, to protect. But it only has the power for the one who believes. I believe. Do you believe? Let's all believe in His name, and let's call upon the Lord for our people, our nation. Our people are Christians. And as people of Pakistan celebrate 14th of August, we will be celebrating it as well, although we are in UK. But we will also be remembering a sad event that happened on the 16th of August, 2 years back, when churches were burnt, Bibles were burnt in Jarawala. And I raised a hallelujah. I raised the Pakistani flag here in front of the High Commission with many other Christians. But still, the Christians have not received justice. Is this Pakistan Pak? I believe that it has drunk a lot of blood of innocent people. And God is angry because God favors the innocent. No matter what religion, He favors the innocent. And I'm standing in the gap and calling on to Him for justice for my people. And my people are called Christians. I'm raising a hallelujah, and it's reaching the throne because I see.
I see and I hear his voice. His voice is like the waters rushing, and his voice is like a whisper. As Elijah heard him, like a whisper, he said. As we read in 1 Kings chapter 18, his voice is like a whisper, and you will only hear him when you are still. As it is written in Psalm 46:10, be still and know that I am God. He wants us to be still so that we may know him. He desires communion. He desires fellowship. And that can only happen when we close ourselves in our closet. As I do every day, I close myself in my closet, my prayer room, and I bow at the one true God, and his name is Yahweh. And I thank him for choosing a plan for my salvation and yours and every human being. And that salvation is in the name of Yeshua. He's the way, the truth, and the life. So let's call upon Yeshua, Yahweh Rapha, our healer, my banner, Yahweh Nissi. And let's bow our heads in prayer as we start this meeting. Father God, God of Abraham, Isaac, and Jacob, I thank you today. As it is written, where two or three shall gather together in my name, I will be there. Yes, your Holy Spirit is there because you're not bound by physicalities. You are a spirit. The scripture says God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Father God, you know my heart. Nothing is hidden from you, and you know the heart of every man and every woman. What can we hide from you? Even the scripture says, if we go into the depths of the sea or we climb the highest mountain, your eye sees us. Your eye sees us. You know our tomorrow. You know our day after tomorrow. You know the days to the end of our time on this earth. And I'm ready. I'm ready more than ever for Jesus. Enable me to lead your people into the truth. And like Jesus said, verily, verily, I say unto you, truthfully, truthfully, I say unto you, enable me to say the truth and nothing but the truth, so that many more can come into the kingdom, because time is at hand. Before the fire engulfs them, I pray that many more come to know Jesus in their last breath, because that is the only time we have, our last breath, till we can repent. Because when the breath is gone and this life and this body becomes a lifeless body, the decision is done. It's done. And nothing, no prayers, no tears can revert the decision, whether it's hell or it's heaven. And heaven is a place with our God, praising him. So Father God, bless this meeting. I ask in the only name that I know, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Let's praise the Lord from Quetta. Praise the Lord. Thank you, Jesus. As we do, हम प्रस्तिश का स्टार्ट करेंगे एक ज़बूर से, ज़बूर 22, याद यहोवा दी सब करेंगे. Bishak. And that's the foundation psalm of Stars of David. Amen. Amen. याद यहोवा दी सब करेंगे, कंडे सारी दुनिया रे.
याद यहोवा दी सब करनगे कंधे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखन गियां ओसेदा सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखन गियां ओसेदा जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ Oh, कौमां yes, दा yes, Father God. जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ हमारा दुनिया रे सब दौलत वाले करनगे सजदा बेशक, खावनगे बेशक, it is written. दुनिया रे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे अपनी जान बचा बचा ना सकदे सकदे मिट्टी मिट्टी विच विच मिल मिल जावनगे जावनगे अपनी जान जान बचा बचा ना ना सकदे सकदे मिट्टी मिट्टी विच विच मिल मिल जावनगे। जावनगे रब दी करेगी इबादत Hallelujah. एक पीढ़ी जही आवेगी रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी आवन वाली पीढ़ी नू रब रब दी दी खबर पहुंचावेगी पहुंचावेगी आवन वाली पीढ़ी मेरी नू रब दी दी खबर खबर पहुंचावेगी पहुंचावेगी। दसेगी सच्चाई Oh, रब दी yes. Oh, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ वो सच्चा खुदावंद है और हम भी ਦੱਸੇਗੀ सच बोले। ਸਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ उते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करनगे कंधे सारी दुनिया दे दिल दे नाल जुड़ावनगे आगे पाक खुदावंद दे हालेलुया। बेशक। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। यहोवा पाक है, यहोवा हमारा खुदावंद है, उसका नाम जिसका मतलब है आई एम। यहोवा का मतलब है आई एम। और हमारे क्रिश्चियंस ही अपने खुदा को नहीं जानते। जैसे मसीह ने कहा तुम दुआ कैसा करना है, दुआ करना आए हमारे बाप। और आज ही सुबह मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें लिखा था कि जीसस इज आवर किंग, हालेलुया। Jesus is our redeemer, hallelujah. Jesus is our healer, hallelujah. Jesus is our savior, hallelujah. Jesus is our father. Jesus is not our father. Christians are saying hallelujah to everything that they see on Facebook. But that is because they do not know what is right, what is wrong. They do not know what is written in the Bible, and they do not understand the Bible when they read the Bible. एंड द प्रॉब्लम इज कि हमारे जो पासवान है उन्हीं को बाइबल समझ नहीं आती, इसीलिए वो भी कलीसिया को समझा नहीं पाते। वो पढ़ के अपने दिमाग से समझा के चले जाते हैं, और जो पाक रूह चाहता है वो कलीसिया तक नहीं पहुंचता। तो प्लीज आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के सर्कल है उनमें जरूर बताएं कि यीशु बेटा है, वो बाप नहीं है। और हर एक चीज पे हालेलुया बोलना सही नहीं है,
क्योंकि अग्रीमेंट जब आप करते हैं तो वो चीज ठहर जाती है। जब आदम और हवा ने एग्रीमेंट की गुनाह करने में, तो वो हो गया। खुदा ने उनके हाथ नहीं पकड़े कि तुम ना करो। खुदा चाहता तो उनको रोक सकता था, लेकिन उसने हवा का ना हाथ पकड़ा, ना आदम का हाथ पकड़ा। आज भी वो गुनाह करते हुए किसी का हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि वो उसने हमें एक मर्जी दी है, और उस मर्जी के मुआफिक हमें या सजा मिलती है या जजा मिलती है। तो प्लीज, जो बाप है उसका दर्जा बुलंद और बाला है, और मसीह जैसे उसने सिखाया, आए हमारे बाप, हम उसको बाप का रुतबा दें। और मसीह को बाप ना जाने, वो बेटा है, वो लेने आ रहा है हमें किसके पास ले जाने के लिए? बाप के पास ले जाने के लिए, हमें वो मकाम देने के लिए जो हमसे छूट गया। वो जहां जलाल है, जहां परस्तिश है, जहां पाकीजगी है, और वो जो ये जिस्म खो बैठा, हम परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बेशक। और ये वही वाली बात होगी कि ये पाखरू आपके बिल्कुल काम कर रहा है, और हम बिल्कुल पाखरू में एक होके चल रहे हैं, क्योंकि आज की जो वर्स है, आज का जो मैसेज है, वो इसी गीत के बहुत ज्यादा, इस गीत में बहुत गहराई है। इसके अल्फाजों पे गौर कीजिएगा आप, जो कि आने वाले दिनों में जब भी आप देखें, इसको सुने, इसके लफ्जों पे गौर करें, क्योंकि लफ्जों के माने जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लफ्जों के माने नहीं जानते, तो फिर आप में और तोते में कोई फर्क नहीं है। एक तोते को भी आप रटा देते हैं, और वही गीत वो रट के बहुत खूबसूरती से गा सकता है, लेकिन हमें उसके माने जानना जरूरी है, और फिर उस पर अमल करना जरूरी है। आमीन यीशु। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बेशक। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, हालेलुया। यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आमीन। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बुझने न देना तुम यस। मशलों को कभी, बुझने न देना तुम मशलों को कभी। यस। ना बुझने। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। एक दूजे को बतलाना, यीशु आने ओ यस फादर वाला गॉड, आई है। एम टेलिंग, यू मस्ट टेल एज वेल। दूजे को बतलाना, यीशु यीशु आने आने वाला वाला है। है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, यस। पूरी हो रही है नबूवतें सभी। ठंडी पड़ गई है ओ यस मोहब्बतें लॉर्ड। सभी। यस। ठंडी पड़ यस गई लॉर्ड। है
मोहब्बतें सभी, Yes, it is written. ये वादे तोड़ निभाना यीशु आने Oh, yes. वाला है। वादे तोड़ निभाना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना यीशु आने वाला है। सुला के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। Yes, let's bring peace. सुला के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। Yes, I'm going to nations. Yes, Father. यीशु आ रहा यीशु आ है, रहा है. बशारत दो दुनिया Yes, में। I am giving. You should give it too. यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना यीशु आने वाला है। Hallelujah. बेशक. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. वो आने वाला है. वो आ रहा है. He's on his way. He's on his way. और अगर हम अभी भी अपनी राहें दुरुस्त नहीं करें तो हम पे उसका कहर नाजिल होगा, क्योंकि जो उसको जानते नहीं, जो उसको जानते नहीं, उन पे कैसे वो हुक्म सादिर करेगा। लेकिन वो हम पे हुक्म सादिर करता है, वो हम पे कहर नाजिल करेगा, क्योंकि उसने हमें कहा जाओ और दुनिया में कलाम पहुंचाओ, अंजील फैलाओ। और अगर हम अंजील नहीं फैलाते तो हम गुनहगार ठहरते हैं। जो अंजील नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, वो गुनहगार नहीं ठहरते, हम गुनहगार ठहरते हैं। क्योंकि वो आया, वो मुआ, वो जी उठा और उसने हमें अब बोल दिया, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। अब फर्ज हम पे है जो उसके नाम से कहलाते हैं क्रिश्चियंस। और अगर हम नहीं मसीह का कलाम दूसरे तक पहुंचाते तो हम गुनहगार हैं। वो जो मसीह को नहीं जानते वो कतन गुनहगार नहीं। तो आए हम मसीह का पैगाम पहुंचाएं और रूह के फलों से अपने दरख्त को भरें, ताकि वो जो कि मसीह को नहीं जानते वो हमारे अच्छे कामों से मसीह को जाने और खुदा की तारीफ करें जो तख्त पे तख्त नशी है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। खुदाम का शुक्र, खुदाम की तारीफ। परस्तिश में आगे बढ़ते हैं। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, हमें फजल बख्श। खुदाम का शुक्र, खुदाम की तारीफ हो। सॉरी, मैं कुछ सेकंड के लिए खामोश था। एक्चुअली मेरे सामने एक गीत आ गया, मैंने लिस्ट में गीत एक और रखा था,
बट ये मेरा बहुत दिल कर रहा है ये गीत गाने का, बिल्कुल तो बिल्कुल, इसका मतलब जब प्रेज द लॉर्ड। जब कुछ आपने प्लान किया हो और वैसा ना हो, तो दैट मीन्स पाखरू कुछ आपसे करवाना चाह रहा है, तो दैट मीन्स आवर प्लान्स गो बिहाइंड एंड पाखरू जो है उसकी गाइडेंस में हम आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। अचानक से मेरी आंखों के सामने आ गया, बहुत टाइम से मैंने भी नहीं गाया। तो लेट्स प्रेज गॉड, और हम गाते हैं शोले शोले शोले, ओह रूठी आग यस, के शोले। यस यस, ये बहुत नीड है। ये भस्म करने वाली आग जो है ना, ये बहुत नीड है। सबसे पहले तो इसको आग को मांगेंगे आज जब हम दुआ करेंगे मसीही अवाम के लिए और खास तौर से पासबानों के लिए। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। शोले शोले शोले, रूठी आग के शोले। शोले शोले शोले, रूठी आग के शोले। हे खुदावन, जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, रूठी आग के शोले। रूठी आग के शोले। यस फादर गॉड, यस। शोले शोले भेज। शोले, रूठी आग के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी, सब यस, बदकारी और मैं कशी। कर भस्म तू गुस्सा और बदी, यस सब लॉर्ड। बदकारी और मैं कशी। पर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू तू ही तू। ही तू पर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। तू साथ है जिसके, ए यीशु, तू साथ है जिसके, ए यीशु। डोले डोले डोले, कभी ना फिर वो यस, कभी डोले। नहीं। डोले डोले डोले, कभी न फिर वो डोले। भेज खुदावन, मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन, भेज खुदावंद, मेरे जिंदा मेरे जिंदा खुदावन। खुदावंद। तू की आग के शोले, रूह की आग के शोले। तू की आग के शोले। यस। शोले शोले शोले, रूह आग के के शोले। शोले। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा। है तेरी भी इसमें रजा, हम पाते हैं अपनी शिफा। है तेरी भी इसमें रजा, तू बख्शे उसी को जिंदगी। ओह यस। तू बख्शे उसी को जिंदगी। जिंदगी। खोले 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 खोले, दिल का दिल का दर जो राज। खोले। खोले खोले खोले, दिल दिल का का दर दर जो जो खोले। खोले। भेज खुदावन, Oh, send Father God fire, मेरे जिंदा fire, खुदावन। holy fire. ओ भेज खुदावन, मेरे जिंदा जिंदा खुदावन। खुदावन,
रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, सब लानते हमसे दूर की, सब नासूर की, सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर Oh, की, yes. डाली जो दीवार थी, जो बाप और हम में दरार थी, Oh, thank you, Jesus. डाली जो दीवार थी, जो बाप और हम में दरार थी, जोड़ा है उसको Oh, खून thank से, you. Thank you, Jesus. जोड़ा है उसको खून Holy से, धोले धोले धोले, Dhole. लहू से दामन लहू धोले, से दामन धोले. धोले धोले Still time. धोले, लहू से Coming दामन soon. There's still धोले, time. भेज खुदावन, भेज खुदावन. मेरे जिंदा मेरे जिंदा खुदावन, खुदावन. ओ भेज खुदावन, मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Beautiful song. One of my favorites. और ये बहुत ही anointed गीत बहुत से होते हैं जिससे anointing आती है, बट ये पाकरू के मुनासबत से कि जब हम पाकरू की जो आग है, क्योंकि पाकरू जो है वो कलाम में उसको एक डव की भी मुशाबा कहा गया है, जैसे कि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया था वो डव की मानंद उसके आके कंधे पे बैठा था, और नॉट कि वो कोई कबूतर है. होली स्पिरिट, ही इज अ पर्सन, ही हैज अ पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी उसकी जो है वो एक बहुत ब्रॉड है. फ्रॉम बीइंग वेरी वेरी हम्बल एंड टिमिड, बहुत ही शाय, और जैसे कि कबूतर बिल्कुल आप उसको शू करो तो वो उड़ जाता है, वो एक पर्सनालिटी है पाकरू की. और दूसरे एड पे उसकी दूसरी एक्सट्रीम पर्सनालिटी क्या है कि वो आग है, वो भस्म कर देने वाली आग है. ये दो एक्सट्रीम्स है पाकरू की, कि वो एक कबूतर की मानंद भी है, और कहते हैं कि डू नॉट, कलाम में लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट. तो आग को हम ग्रीव नहीं कर सकते, आग तो खुद जो है वो जिस पे आती है तो वो भस्म हो जाती कर देती है. लेकिन जो उसका नेचर है कबूतर वाला, कबूतर की मानंद बिल्कुल टिमिड और डरने वाला, वो डरता नहीं है. लेकिन हम जब खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं तो क्या होता है, खुदा जो है वो आपको गुनाह करने से रोकता नहीं है. तो क्या होता है, वो चुप करके साइड पे हो जाता है और वो देखता है, और फिर वो गमगीन होता है, गमगीन होता है, और वो फिर आपको टाइम देता है कि आप अपने गुनाह से जो है दूर हो जाएं, धुल जाएं, ये मसीह के लहू से पाक हो जाएं. लेकिन कब तक वो टाइम देगा, कब तक, आखिरी ब्रेथ तक वो टाइम देता है. और जो कि पासबान है, खास तौर से जो कि दिन रात कलाम उनके मुंह पे होता है, अगर उनके दिलों में कलाम नहीं है और उनके एक्शंस में कलाम नहीं है तो फिर वो भस्म करने वाली आग की मानंद उनकी जिंदगियों में काम करता है. तो अब मैंने जैसे कि ये गीत गाया जा रहा था और खुदा ने मेरी रूह की आंख खोली है, आई सॉ 4 फायर बॉल्स, और वो पाकिस्तान की तरफ जो है खुदावन का रूह जो है वो काम करने के लिए तैयार है, और वो पासबानों के थ्रू ही काम करना चाहता है, क्योंकि उसने पासबानों को खड़ा किया है, लेकिन पासबान उसके पीठ करके खड़े हो गए, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मशहूरी चाहते हैं, अपनी जय जयकार चाहते हैं, और यीशु की जय जयकार कोई नहीं कर रहा. हमने सुना, आ तू ही नजर हम में, कौन से पासबान में यीशु नजर आ रहा है,
वहां तो सब डोनेशन मांगते हैं, अपने घर बनाते हैं और अपने के लिए गाड़ियां खरीदते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं और बच्चों को बाहर भिजवाते हैं। कौन सा यीशु है? ऐसे ऐसे कौन सा यीशु करता है? यीशु ने तो कोई अपने लिए बिल्डिंग्स नहीं खड़ी की, बिजनेसेस नहीं किए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करना गलत है, लेकिन अगर आप खुदा का पैसा यूज करें जो खुदा के घर के लिए दिया गया है, उसमें से आप अपने घर का खर्चा चलाएं और आप अपने बच्चों पे खर्च करें और गाड़ियां लाएं, तो वो फिर शोले जैसी आग जो है वो भड़केगी और वो तंबी खुदावंत करता है। और कहीं मुझे, आई डोंट नॉट टेक नेम्स, बट लाहौर में अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि कुछ एक दो ऐसे पासवान है जिनको तंबियां की हैं। अभी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हो रहा है, और अब रिसेंटली एक का पता चला कि हम जानी नुकसान भी हुआ है। और अगर वो अपनी रविशें दुरुस्त नहीं करेंगे पासवान पाकिस्तान के, क्योंकि आज मैं खास पाकिस्तान के लिए दुआ कर रही हूँ, मैं शिफात में भी थी, और ये अगस्त का महीना है, हमारी मुल्क का इंडिपेंडेंस का महीना है। लेकिन अगर पासबान अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे और उनमें से अगर मसीह नहीं दिखेगा, तो खुदावन की जो आग है वो वो उनके लपटे में आएंगे, और वो आना शुरू हो गई है। और मैंने ग्रुप में, अगर आपने देखा होगा, 1 अक्टूबर को मैंने बात की है, और कईयों पे तो ऑलरेडी खुदा का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो काम करना शुरू कर दिया आग। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद इट विल गेट मोर फायरी फॉर द पास्टर्स, क्योंकि वो बहुत से जब अपने गले को चरा रहे हैं, तो वो अगर पहाड़ पे लेके जाएंगे और आगे से खाइए तो सारी भेड़ें भी गिर जाएंगी। तो इट्स हाई टाइम कि भेड़ें अपनी आंख खोले और पासबान या तो दुरुस्त हो और हरी चरागाहों में लेकर जाए, नहीं तो देयर इज अ डेड एंड फॉर देम। So let's just continue to call upon the Lord. He's enthroned. He gets enthroned on the praises of his people. We are his people and we are praising our Father, our God in heaven, and thanking him for Jesus, क्योंकि उसके खून के वसीले से हम पाक होते हैं, और फिर पाक रूह हम में से होके काम कर सकता है, और रूह के शोले हम भेज सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं और आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो। छू मुझे छू खुदा, रू मुझे छू। ओ यस, मच नीडेड दिलों को छूने के लिए। ये जो पासबान है, उनमें से बहुत से पासबान हैं जो कि कबूतर की मानंद समझते हैं पाकरू को, और उनके उनके जब भी दुआ करते हैं तो वो कबूतर आके घूम के बिल्डिंग में चला जाता है भर, और वो दिल का दरवाजा नहीं हाँ, खोलते कि कबूतर अंदर भी आ जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तेरा शुक्र, तारीफ हो। छू मुझे छू खुदा, रू Oh, Father God, मुझे छू, yes. Calling upon रू the Holy Spirit. Touch. मुझे छू Touch the preachers, the खुदा, pastors. Make मुझे yourself छू। known to them. मेरी जान को, मेरी रूह को, Oh, touch their souls. तेरे बदन को छू। Mm. मेरी जान को, Mm. मेरी रूह को, May they know you. मेरे May बदन Jesus be को seen छू। in them. छू Mm. Mm. मुझे छू खुदा, रू मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे Oh, thank you. Thank you, Father God. हाथों से अपने You सजाए। are our potter. मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने अपने सवारे। सवारे। यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें
निखारे, Oh, hallelujah. कलामे खुदाबंद बूंदे हमें और निखारे, ले मुझे ले खुदा रू, मुझे ले Touch them. मुझे ले Touch the pastors. दारू, Let the fire मुझे ले touch them. मेरी जान को, मेरी रूह Yes. को, Yes, Father. तेरे बदन को Touch. ले, मेरी जान को, You can do it. मेरी रूह को, You are willing. मेरे बदन को ले, Choo, मुझे छू choo. दारू, Go choo. मुझे छू। Yes. आलूदगी जा जिस्म की, Oh, yes, you are a holy God. रूह की दूर कर दे, And those, oh, yes, आलूदगी be जा holy जिस्म की, as I am holy, he says. रूह की दूर कर दे, Let us be holy. खौफे यहोवा हो कामिल, Let us fear Yahweh. Do not fear पाकीज़गी any से other person. भर दे, Fear God, खौफे यहोवा हो Yahweh, कामिल, our God. पाकीज़गी से भर You're a दे, holy God. धो मुझे धो Wash them, God, खुदा रू, my God. Wash मुझे them धो with the blood of मेरी Jesus. जान को, There's still मेरी time. रूह को, Wash. तेरे बदन को धो, मेरी जान को, मेरी रूह Wash me. को, मेरे Wash your people. बदन को धो, Wash us. Cleanse us. मुझे छू Touch us. खुदा, मुझे छू। Oh, yes. जीवन की जोत जलायूं, Yes. Jeevan ki jyot. जैसे जले जोत तेरी, Oh, yes. Just like you. जीवन की जोत जलायूं, Mm. जैसे जले जोत तेरी, Mm. सोचे हो मेरी भी ऐसी, Oh, yes. Give us the mind of Christ. जैसी है सोच Give me the mind तेरी, of Christ. सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी, Mm. भर मुझे भर मुझे भर दारू, खुदारू. मुझे भर Yes, Yahweh. भर, Fill me. मुझे भर Use me. दारू, Guide me. मुझे भर Send me. मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को भर, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को भर, छू मुझे छू खुदा रू, Touch. मुझे छू Fill me, Holy Spirit. होठों को छू, होठों को छू. सोचों को छू, सोचों को छू. ख्यालों को छू, ख्यालों को छू. है यीशु, Oh, को Jesus. छू, सोचों को छू,
ख्यालों को छू है यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू Oh, मुझे छू उदारू touch me. Yes. मुझे छू. Mm. Praise the Lord. Praise the Lord. What a beautiful moment of worship as I literally feel the Holy Spirit, and He's present. God is present, and He desires to make ourselves Himself be felt by us. वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी को महसूस करें, और अगर हम उसकी हजूरी को महसूस नहीं कर रहे तो फिर कुछ अंदर टूटना बाकी है, अंदर की कुछ सफाई और बाकी है. हम किसी को नहीं जज कर सकते कि कौन किसका दिल कितना पाक है, लेकिन हमारा खुदावन जो है सिर्फ वो जांच सकता है कि किसके दिल का हाल कैसा है, किसका दिल पाक तरीन हो गया है और किसके दिल में अभी भी कुछ जाले बाकी हैं. और वो सफाई करता है, और वो सफाई है कलाम. कलाम हमें साफ करता है, और ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने जाले साफ करूं और मैं अपनी बिल्डिंग अंदर से साफ करूं, ताकि पाक रूह उसमें आके बसेरा कर सके. जैसे कि हमारे घर हैं, कोई भी गेस्ट अगर आता है तो हम उससे पहले अच्छी सी सफाई करते हैं कि आज दावत है, आज गेस्ट ने आना है. आगे पीछे अगर हमारा घर गंदा भी है तो हम कहते हैं चलो कोई नहीं, कल, स्पेशली लेडीज जैसे वो आमतौर पे सफाई का जिम्मा होता है, हम कहते हैं आज नहीं, थके में कल कर लेंगे. लेकिन जब मेहमान ने आना होता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आज तो थके हैं टूटे हैं, सफाई करनी लाजमी है, मेहमान ने आना है. और मेहमान आके चला जाता है, हमारा घर साफ सुथरा हो तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो, वो क्या कहेगा कि घर साफ नहीं है. ये हम दुनियावी बात कर रहे हैं. और ये मंथ जो है हम मैंने शुरू किया, जैसे पिछले सैटरडे भी आपने जिन्होंने ज्वाइन किया, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जरूर देखे. हम टेम्पल पे बात शुरू की है, टेम्पल की पाकीजगी की बात शुरू की है. टेम्पल जो कि टैबरनैकल की सूरत में मोबाइल टेम्पल था. मूसा ने मोबाइल टेम्पल बनाया जिसका नाम था टैबरनैकल, क्योंकि वो 40 साल बयाबान में घूमते रहे और कोई प्रॉपर जगह नहीं थी कि यहाँ पे बसेरा हो और बस यहीं पे हम रुक जाएं और यही हो. तो वो एक मोबाइल टेम्पल था. लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचे तो फिर टेम्पल बना, पहला टेम्पल बना, उसके बाद दूसरा टेम्पल बना. और जो आप में से नहीं थे पिछले सैटरडे, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, और जूस उसको बनाते भी हैं, लेकिन वो सोग की सूरत में बनाते हैं. मैंने सोग की सूरत में नहीं बनाया, और वो सोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो थी हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से 5वां महीना और उसकी 9वीं तारीख. और इस दिन पहला टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ, और दूसरा जो टेम्पल है वो भी इसी दिन डिस्ट्रॉय हुआ, 5वें महीने की 9वीं तारीख पे. और वो सोग मनाते हैं, रोजा रखते हैं, काले कपड़े भी पहनते हैं. सोग मनाते हैं कि टेम्पल नहीं है हमारे पास, हम परस्तिश किधर करें. अब वो तीसरा टेम्पल का वेट कर रहे हैं कि वो बनेगा, फिर उसमें हम जबा करेंगे, और फिर जो है हम अपनी परस्तिश जो है वो शुरू करेंगे. लेकिन कलाम क्या कहता है?
कलाम कहता है कि टेम्पल क्या है। बहुत अच्छी बात है, हमारे पास चर्चेज हैं, जगहें हैं जहाँ पे हम परस्तिश करते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, और उसके लिए भी, उसकी भी सफाई के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो उसको साफ रखता है कि गंदा ना हो चर्च। लेकिन चर्च सातों दिन ही साफ रहता है, क्योंकि चर्च में सिर्फ एक दिन ही लोग जाते हैं, संडे के दिन। तो अगर हम अपने गेस्ट के लिए सफाई करते हैं घरों की, कि गेस्ट आए तो वो उसको गंदा ना नजर आए, तो फिर उस टेम्पल की हम क्यों ना सफाई करें जहां पे गेस्ट ने नहीं आना, जहां पे हुकूमत करने वाले ने आना है। और वो जगह है ये टेम्पल, हमारा जिस्म। अगर हम इसकी अंदर से धुलाई नहीं करते तो फिर एक गेस्ट की सूरत आता है, पाकरू, हमारे कंधे पे आके बैठता है, हमें उसकी अनॉइंटिंग फील होती है, और फिर जब हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, हम अपने कामों में, खाना पकाना, जॉब, ऑफिस, और कोई भी काम जिंदगी का, तो फिर हम भूल जाते हैं और फिर हम कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि जो खुदावंद के हजूर मकबूल ना ठहरे। लेकिन वो कबूतर की मानिंद हमारे कंधे पे बैठने के लिए नहीं भेजा गया, वो तो हमारे अंदर रहना चाहता है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी और एक इंटरव्यू था, और वो एक चाइनीज स्कॉलर से इंटरव्यू हो रहा था कि अम, उसने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी जो कि होली बुक्स मानी जाती हैं, कि जी डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट किताबें हैं और होली बुक्स हैं। तो चाइनीज जो कि कोई भी होली बुक को फॉलो नहीं करते, तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें कौन सी रिलीजन की किताब जो है वो डिफरेंट लगी, और तो उसने कहा कि जी मुझे बाइबल डिफरेंट लगी, और उसमें से बाइबल में भी नया ऐतनामा डिफरेंट लगा, और उसमें ऐसी चीज थी जो मुझे बड़ी अजीब लगी। तो उसके इंटरव्यूअर ने कहा कि मैंने सोचा शायद उसको ये अजीब लगी कि यीशु जो है एक कवारी से पैदा हुआ, क्योंकि ये तो आज तक नहीं सुना कि कोई, किसी ने जन्म किसी कवारी औरत से लिया हो। तो उसने ये नहीं जवाब दिया, उसका जवाब था कि ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि खुदा अंदर आके रह सकता है, क्योंकि बाकी सब रिलीजन्स में एक खुदा है जो कहीं दूर है, और उसको पूजना है, उसको खुश करना है, उसको चढ़ावे देना है, उसके उससे डर के दुआ करनी है क्योंकि वो सजा देगा। लेकिन मसीह की तालीम सुन के ये बात बहुत अजूबा है कि तुम्हारा एक खुदा है जो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। दैट इज आवर गॉड, एंड ही wants to live in us in the form of Holy Spirit. And the Holy Spirit can only enter and stay and live if the place is holy from inside. If it's not holy, then the Holy Spirit will definitely come. You may feel the Holy Spirit because the Holy Spirit will be hovering around a place where there is praise, worship, intercession. But वो आपके अंदर सकूनत नहीं करेगा। और अगर मेरे अंदर पाखरू सकूनत नहीं करता, तो खुदा की कुदरत मेरे अंदर से कैसे नजर आएगी, मेरे अंदर से यीशु कैसे नजर आएगा। मैं आज भी अपनी अंदरूनी बिल्डिंग को धोने की कोशिश कर रही हूँ, और पाखरू ऐसा है, वो रूह है, और वो हमने उसको गेस्ट बना दिया है,
वो हुकूमत करना चाहता है। मतलब ये कि वो जब जगह साफ हो गई है और कलाम से हम जगह साफ करते हैं, तो वो इस घर में जो हमारा जिस्म है उसके अंदर दाखिल होके हमारे दिल में हुकूमत करना चाहता है 24 घंटे 7 दिन। लेकिन हमने उसे गेस्ट बना दिया है। हम पाक करते हैं जगह, कलाम पाक पढ़ के, वो आता है अंदर, पाक होगी जगह। फिर हम कोई गुनाह कर देते हैं और फिर क्या होता है, वो हम रजीदा कर देते हैं उसको, और हमारी जिंदगी में फिर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकीज़गी और गुनाह का कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। और पाक क्या है? पाक सिर्फ पाक रूह है, क्योंकि खुदा रूह है। कलाम कहता है खुदा रूह है। खुदा ने जिस्म की शक्ल ली और वो गंदा हुआ, क्योंकि ये जिस्म नापाक है, लेकिन उसकी रूह नापाक नहीं। वो रूह की कुदरत से पैदा हुआ और जिस्म उसने लिया ताकि हमें सिखा सके कि तुम्हें कैसे पाक होना है। और पाक पाक हम अपने कामों से जो है, इजरायली कौम अपने कामों से खुदा को खुश करने की कोशिश की, करता रहा, लेकिन जो जरूरी काम है उनको पीछे छोड़ दिया। मतलब कि वो कुर्बानियां करते रहे, सारे जो लॉज है उनको फॉलो करते रहे, लेकिन वो एक गुनहगार को हकारत की नजर से देखने लगे, एक छोटे शख्स को, एक गैर इसराइली को वो गंदी निगाह से देखने लगे। और यही मसीह का मकसद था कि तुम्हें वो भी करना था और इसको भी नहीं छोड़ना था। यानी कि उनमें रूह के फल नहीं नजर आए, रूह के फल नहीं नजर आए। और रूह के फल कैसे नजर आ सकते हैं? अगर आप में रूह है, और अगर आप में रूह नहीं तो फल कैसे नजर आएंगे? और हमें डेफिनेटली, हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम कहता है कि जज नॉट और दाउ शैल बी जज्ड। लेकिन हमें रूह के फल नजर आते हैं, और हमें कलाम कहता है कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। और कलाम की रूह से हम किसी को देख सकते हैं कि इसकी जिंदगी में रूह के फल काम कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि नहीं। और सैडली बहुत से पासवान हैं जिनकी जिंदगियों में रूह के फल ही नहीं नजर आ रहे, क्योंकि वो कलाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। सबसे पहला हुक्म ही एक पासवान के लिए क्या है? पासवान कौन है? काहिन पासवान था। यीशु को काहिन कहा गया। और पासवान के लिए एक प्री रेक्विजिट है, यानी कि एक हुक्म जरूरी है, बाकी तो पीछे उसको फॉलो करते हैं। और पहला हुक्म है कि वो एक बीवी का शौहर होना चाहिए। और सैड टू से, हमारे बहुत से पासवान और इवेंजलिस्ट, और जो भी इसको आगे आने वाले दिनों में देखेगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है और मैंने कुछ अपने दिल से नहीं बनाया। इट इज ऑल रिटन। If somebody wants to challenge me, they need to read the word, because that's the only challenge I can take. और वो दो दो बीवियां रख के कलाम पेश कर रहे हैं, पाक मजबा पे दो बीवियों के साथ कलाम पेश कर रहे हैं। और कुछ लोगों की एक बीवी है और वो गर्लफ्रेंड्स रख के कलाम पेश कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम पाक कलाम पेश कर रहे हैं। कलाम तो पाक है, लेकिन आपने जगह को पाक नहीं रखा। और खुदा का कहर अब रेडी है उन सब के लिए जो पाक मकान को नापाक करते हैं और कलीसिया को परागंदा कर रहे हैं। और उनको ये छूट मिल रही है कि अगर वो एग्जाम्पल सेटर्स है, और फिर कलीसिया कहती है कि अगर वो कर सकता है, वो तो कलाम सुनाता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? कलाम में अगर कोई मिसाल है जहां पे नए अहदनामे की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं लोग मिसाल देते हैं इजराइल की कि उसकी दो बीवियां थी, तो फिर अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर प्लीज लेविटिकस में जितने लॉज हैं उनको भी फॉलो करें और सारी कुर्बानियां दें और मसीह को भूल जाए। तो अगर आप मसीह को फॉलो करते हैं तो फिर जान लें कि मसीह जो है वो 4 अंजीलों में नजर आया, और जो मसीह को फॉलो करता है उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, क्योंकि उसने अगर गलत निगाह ही कर ली तो उसने गुनाह
कर लिया। गुनहगार जो है फिर वो खुदावन की बारगाह में नहीं दाखिल हो सकता जब तक कि वो गिड़गिड़ा के अपने आप को रास्तबाज ना करे, माफी ना मांगे, वो रास्तबाज नहीं ठहर सकता। तो पासवान हमारे लीडर्स, आज हम उनके लिए दुआएं करेंगे कि उनकी आंखें जो बंद है, उनके कान जो बंद हैं, वो खुदावन कलाम कहता है, लिखा है कि ये देखते हुए नहीं देखते, ये सुनते हुए नहीं सुनते, कि खुदावंद उनकी आंखें खोले। जैसे कि पौलुस रसूल था, उसकी आंखें बंद थी और वो क्रिश्चियंस को मारता भी था, लेकिन वो वक्त आया कि जब उसके आंखों से छिलके गिरे और फिर वो ऐसा मसीह की मोहब्बत में रहा कि वो वो जगह जगह गया। वो उसने कोई किसी से वो नहीं डरता था, और वो तंगी भी सहता था। वो जेल में भी चला गया, उसको भेज दिया गया, और सबसे शादमानी वाला लेटर ही उसने जेल में बैठ के लिखा, फिलिपियो का खत, शादमानी वाला लेटर, अ लेटर फुल ऑफ जॉय। तो शम्मे जलाए रखना ये बहुत जरूरी है। और शम्मे कैसे जलती है? कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है। तो कलाम जो है वो चिराग है, लेकिन चिराग जलता कैसे है? चिराग आपके पास आ गया, कलाम आपके घरों में है, हमारे सब क्रिश्चियंस हैं, उनके पास चिराग है, लेकिन ये वो अलादीन का चिराग है जो मौजज़ात कर सकता है आपके लिए। कब? जब उसमें तेल हो। तो अगर आपके पास तेल नहीं, और एक चिराग में थोड़ा सा ही तेल आता है, चिराग कोई टैंक नहीं होता कि उसमें मनोमन तेल समा जाए। चिराग में थोड़ा सा तेल होता है, और जब वो जल जल के खत्म हो जाए तो वो बुझ जाता है। तो अगर आप अपने चिरागों को रिप्लेनिश नहीं करते, फिर से नहीं भरते, तो फिर आप एक चिराग लेके घूम रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं बादशाही में पहुंच जाऊंगा। और ये मेरे लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले जो मैं बोल रही हूं, अगर मेरे पास ही चिराग है जिसमें तेल नहीं, तो मैं क्या रोशनी दिखाऊंगी किसी को? तो चिराग में रोशनी होना बहुत जरूरी है। तो रोशनी कैसी होती है? एक आज की वर्स जो मैंने शेयर की वो बहुत गहरी है, और उसकी डिटेल में मैं शायद ना जा सकूं, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे, और उसको यही अगस्त के महीने में, जो कि टेम्पल पाकीजगी और हीलिंग और रेस्टोरेशन, रिलैक्सेशन का महीना जिसको मैंने कहा है, आपने अगर देखा हो ग्रुप में, तो ये महीना जो है, हम खुदा को और गहरे से जान सकें, कि हम उसमें सुकूनत पाएं, उसमें हमें हर कमी, हर तंगदस्ती, कोई भी हमारी जिंदगी में हो रहा हो, हम मसरूर रहें, हम शादमान रहें। तो ये वर्स ली गई है फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। As for you, the anointing which you received from him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. अब ये किसको कहा जा रहा है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत गहरी बात है जो मैं अभी गहरे में नहीं जा सकती। But as his anointing teaches you about all things, एक दो चीजें नहीं, all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in him. तो ये बहुत जरूरी है कि अनॉइंटिंग को समझना। लोग पासबान, मैं लोगों की बात नहीं करूंगी, क्योंकि बेचारी पासबानों से सीखती है कलीसिया, और अगर पासबान ही कोई नहीं पता तो वो कलीसिया को क्या सिखाएगा? अनॉइंटिंग बहुत को समझना बहुत जरूरी है कि अनॉइंटिंग है क्या। आज मैं अनॉइंटिंग क्या है उस पे नहीं जाऊंगी। मैं चाहूंगी कि आज आप फर्स्ट जाएं, और आप अपने बाइबल खोलें और फर्स्ट जॉन और उसका दूसरा पूरा चैप्टर पढ़ें। एंड आई विल कंटिन्यू दिस टुमारो। वी आर नॉट मीटिंग, क्योंकि हमारे चर्च की यहाँ पे कुछ है इवेंट। तो नेक्स्ट मीटिंग में जो है फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस पे फर्दर अनॉइंटिंग के बारे में बात करेंगे, जो खुदावंद ने मुझे समझाया और मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। तो आज जो है अनॉइंटिंग के हम अलिफ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अनॉइंटिंग? तो अनॉइंटिंग जो है
कलाम में जब हम अनॉइंटिंग का लफ्ज पढ़ते हैं, तो वो, मैं उसकी फिजिकलिटीज पे पहले जाऊंगी कि अनॉइंटिंग क्या है। अनॉइंटिंग अगर फिजिकलिटी में देखे जाए तो अनॉइंटिंग मुशाबे है ऑयल से। तो पुराने ऐहदनामे में जब डेविड को मसा किया गया, किसी किसी को मसा किया गया, तो ऑयल यूज किया गया। और ऑयल जो है, जब हम पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा कि पास्टर्स भी ऑलिव ऑयल जो है यूज किया गया, और आजकल भी जब हम देखते हैं तो ऑलिव ऑयल चर्चेस में होता है या लोगों के घरों में भी होता है कि ऑलिव ऑयल वो रखते हैं अनॉइंटिंग के लिए। और अफसोस की बात यह है कि वो इस फिजिकल एस्पेक्ट को तो फॉलो करते हैं कि ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और वो अनॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अनॉइंटिंग का मतलब क्या है इसको नहीं समझते। तो अनॉइंटिंग, मैंने जैसे आपको कहा, मैं अनॉइंटिंग के बारे में आज बात नहीं करूंगी, इसकी फिजिकलिटी के बारे में बात करूंगी। और फिजिकलिटी में क्या आता है? ऑयल। ऑयल। ये जो तस्वीर आपने देखी है, ये ऑलिव ऑयल की तस्वीर है, और इसके साथ ऑलिव्स पड़े हुए हैं। और जब हम इजराइल गए तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑलिव ट्री देखा। मैंने कभी ऑलिव ट्री नहीं देखा था। ऑलिव ट्री वो तब के वहां पे भी थे जैसे गार्डन ऑफ गेथसेमनी है। जब जीसस गार्डन ऑफ गेथसेमनी में गए थे, तब इतने पुराने वो ट्री हैं, वो काटे नहीं गए। सो आई वाज थिंकिंग कि प्रोबेबली हो सकता है इस दरख्त को यीशु ने छुआ हो। मैंने वहां पे दरख्तों को छुआ और मुझे ये सोच आई कि हो सकता है इस दरख्त को यीशु ने छुआ हो। और जहां जहां मैं चलती थी, मैं ये सोचती थी शायद इस कदम पे मैंने जहां पे रखा है पैर, शायद इस जगह यीशु के कदम हो पड़े हो। वो जगह पाक है क्योंकि यीशु वहां पैदा हुआ, और वहां पे उसके कदम, वो चल के जाता था या वो किश्ती में बैठ के जाता था। उसके पास कोई घोड़ा नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ था। वो पाक था। और वो खुदा की कुदरत, और अनॉइंटिंग का दूसरा नाम है उसकी कुदरत, उसका जलाल, वो इस जिस्म में लेके घूमता था। ये उसी तरह से है कि जैसे दरिया में पानी है, तो आप दरिया को तो घर नहीं ला सकते, लेकिन आप, अगर आप बीच में जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, तो आपने अगर पानी भरना है तो आपके पास कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप पानी भर के लेके आते हैं। तो यीशु वो कंटेनर था जिसमें पानी भरा गया, और वो पानी की क्वालिटीज वही हैं। यानी कि H2O, अगर आप केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल करें तो वो जो रिवर का पानी और वो ही आप जग में डालें, उसकी कंपोजिशन एक ही होगी, वो फर्क नहीं होगी। तो यीशु वो कुदरत जो कि खुदा की कुदरत है, वो अपने अंदर उस बॉडी में समेटे हुए हर जगह जाता था। और जब वो मसलूब होने के लिए जा रहा था, तो उसने अपने शागिर्दों को क्या कहा कि यहीं रहना, इंतजार करना, जब तक क्या, जब तक पाखरू ना तुम्हें मिल जाए। यानी कि उसके शागिर्द उसके साथ चलते फिरते, खाते पीते, मौजात करते थे, लेकिन उनमें पाकरू नहीं था। They were anointed, they were touched by Jesus, उनके ऊपर उसका साया था, उसका हाथ था, और उसकी कुदरत उनके थ्रू काम कर रही थी, क्योंकि उनको मसा किया गया था। उनको उस कुदरत को इस्तेमाल करने का हक मिला था। पाखरू नहीं अभी मिला था।
तो 30 साल की उम्र में यीशु के ऊपर पाखरू आके ठहरा। वो पाखरू की कुदरत से ही पैदा हुआ था। उसने पानी का बपतिस्मा लिया और 3.5 साल उसने उसकी मिनिस्ट्री के थे, जिसमें खुदा का जलाल जाहिर हुआ उसके थ्रू। कैसे? क्योंकि पाक रू वॉज द वन। द बॉडी हैड नो पावर, क्योंकि जब यीशु ने आखिरी सांस ली तो पाक रू जो है उस जिस्म में नहीं रहा। द बॉडी ऑफ जीसस वॉज टेकन ऑफ द क्रॉस। वो क्रॉस से बॉडी उतारी गई और वो टूम में उसकी बॉडी थी। सो खुदा रूह है, और चूंकि जिस्म ने 100% ओबीडियंस दिखाई और वो इस कुदरत को अच्छे से उसने इस्तेमाल किया, गुनाह नहीं किया इस जिस्म में रह के, तो ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। यहाँ के उसकी बॉडी ही नहीं नजर आई, गायब हो गई। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म हो गई। और फिर वो 10 दिन तक दिखाई दिया शागिर्दों को और बहुत सौ को। जब वो जी उठा तीसरे दिन, और 40वें दिन वो उठा लिया गया। 10 दिन तक वो नजर आता रहा अपने जी उठने के बाद। 10 दिन तक वो नजर आता रहा और फिर वो उठा लिया गया। और उसके बाद 40 दिन के बाद, सॉरी, 40 दिन तक वो नजर आता रहा। और 40वें दिन, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गई, बिकॉज इतनी ढेर सारी मुझे वो रेवलेशन साथ में आ रही होती है कि कई दफा आई 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 मे से समथिंग रॉन्ग। सो तीसरे दिन वो जी उठा और 40 दिन तक वो नजर आता रहा, और 40वें दिन वो उठा लिया गया। और 40वें दिन से 10 दिन तक उन्होंने इंतजार किया पाकरू का। और 50वें दिन पाकरू आया। और कैसी कसरत से आया! ऐसी कसरत से आया कि उनके सर पे शोलों की मानंद नजर आया, जिसे पेंटिकॉस्ट कहा गया, क्योंकि वो 50वां दिन था उसकी जी उठने से 50वां दिन था पेंटिकॉस्ट। पाकरू आया। और वो पाकरू जो है आज भी हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो आ चुका है? क्या हर वक्त हम पाकरू की गाइडेंस से चलते हैं, या हम उसको एज अ गेस्ट ट्रीट करते हैं कि वो आता जाता रहता है? क्योंकि वो गेस्ट हो जाता है। जब हम नापाक होते हैं तो वो छोड़ जाता है, जब हम पाक होते हैं तो वो आ जाता है। तो ये ऑयल जिससे आप अनॉइंट होते हैं, वो बनता कैसे है? मैंने आपको बताया कि अनॉइंटिंग की गहराई में बाद में जाऊंगी, लेकिन आज हम उसकी फिजिकलिटी में आते हैं। तो वो बनता कैसे है उसको भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना बता दूं कि ऑलिव ऑयल जो है वो एक पूरा प्रोसेस है। और अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। ऑलिव्स को एक प्रेस किया जाता है, एक खास वहां इजराइल में, वो मैं नाम भूल रही हूँ, उसको उसमें डालते हैं और वो प्रेस किया जाता है। उसको प्रेस किया जाता है, इतना प्रेस किया जाता है कि उसमें से वो ऑयल निकलना शुरू हो जाए। यानी कि वो शफाफ से शफाफ तरीन तरीका है उसको करने का, कि प्योर से प्योर ऑयल मिले। और जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ऑलिव ऑयल की, और जो बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और वर्जिन का ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उनके लिए। किन के लिए? 10 कुंवारियों के लिए, कि जी 10 कुंवारियां थी और 5 के पास जो था वो लैंप था और उनमें ऑयल था, और 5 के पास लैंप था लेकिन उनमें ऑयल नहीं था। और हमने क्या गीत गाया? शम्मे जलाए रखना। तो लैंप तो सब क्रिश्चियंस के पास है, और वो लैंप है हमारा बाइबल।
ऑयल किस क्रिश्चियन के पास है? दैट इज द क्वेश्चन। और यहीं पे मैं खत्म करूंगी, और इसको आप बाइबल पढ़ें। ये फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब पढ़ें। इफ यू हैव क्वेश्चंस, आप मुझे क्वेश्चंस लिखें। जो आगे आने वाले दिनों में इसको देखेंगे वो भी समझे कि चिराग रखने से आप रैप्चर नहीं होंगे। चिराग रखने से आप सिर्फ सेव्ड होंगे उस आग से जो खुदा के कहर की वजह से जलाई गई। रैप्चर वो होगा जिसके चिराग में ऑयल होगा। और मैं किसी के चिराग को नहीं जज कर रही, क्योंकि ऑयल है या नहीं ये तो सिर्फ खुदा को पता है। और वक्त आने पे हम सबको पता चल जाएगा कि किसके लैंप्स में ऑयल था और कौन सी वर्जन बगैर ऑयल के सिर्फ चिरागदान लेके खड़ी थी या खड़ा था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज वक्त बहुत करीब है और उसका आना बहुत करीब है। और अगर आपको नरसिंगे की आवाज नहीं सुनाई दी तो फिर जान लें कि अब आपके पास एक ही चांस रह जाएगा खुदा तक पहुंचने का, और वो है कि जब मोहर का कहा जाए तो आप मोहर ना लें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चा, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने माँ, अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसको खरीदो फरोख्त सिर्फ उस वो कर सकेगा, यानी कि आप खाना सिर्फ तब खरीद सकेंगे जब आपने मोहर ले ली होगी। तो फिर अगर आप अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप खाना जो है के लिए मोहर लेते हैं, तो फिर जिसने मोहर ली वो नहीं पहुंच सकता, उसके जलाल तक नहीं पहुंच सकता, पाकीज़ा मकाम तक नहीं पहुंच सकता। फिर वो वो शैतान का साथी है, और ये दूसरी फ्लाइट जो है वो भी उससे मिस हो जाएगी। तो ये पैगाम प्लीज औरों तक पहुंचाएं। हम सब पहली फ्लाइट लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम रह गए तो दूसरी फ्लाइट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कलाम कहता है उनके लिए जो उस वक्त हामला होंगी, उनके लिए ये कहर का बायस होगा दूसरी फ्लाइट, क्योंकि अजियतनाक होगी। क्योंकि एक प्रेग्नेंट खातून बहुत तकलीफ उठाती है, वो तकलीफ में होती है, वो बोझ लेके घूम रही होती है। और सोचें कि जब खाना ना मिले और जब वो बीमार हो और दवाई भी ना ले सके तो उसका क्या हाल होगा। इसीलिए वेज वॉर अगेंस्ट द फ्लैश, इस जिस्म के खिलाफ वॉर लड़े और फाते हों, ताकि पहली फ्लाइट ले सके। आई एम वेजिंग वॉर अगेंस्ट सेटन, अगेंस्ट माय फ्लैश, क्योंकि हमारे दो ही दुश्मन हैं इस जिंदगी में, एक हमारा जिस्म और दूसरा शैतान। इन दो पे अगर आपने गलबा पा लिया तो फिर आप पहली फ्लाइट जरूर ले लेंगे। और अगर इन दोनों पे आप में से किसी एक पे अगर गलबा नहीं पा सके तो फिर आप रह जाएंगे। फिर आप दूसरी फ्लाइट के लिए तैयारी करें। तो मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ पहली फ्लाइट के लिए। और वेदर आई डाई, आई नो I will be with Jesus. Or if I'm alive, and that is what I pray for more, to get the flavor of the transformation of the body into another body, and I be lifted up, and He receives me, and He receives all those who have oil. What a glorious day! What a glorious day! और वो जल्द आने वाला है। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी whoever is guided by the Holy Spirit to lead us in the Lord's Prayer, आए हमारे बाप, उर्दू में या अंग्रेजी में, प्लीज लीड अस। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए।
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तुम्हारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। आमीन आमीन। बेशक आए बाप, तेरी ही मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरा होना लाजिम है। तेरी मर्जी अय्यूब की जिंदगी में पूरी हुई तो उसको दुगना मिला। खुदावंदा, हम सब की जिंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो, और मुझे फजल बख्श खुदावंद, ताकि जो भी मेरे हिस्से की प्रॉब्लम्स खुदावंद अगर हैं, तो खुदावंद उसे खुश उसलूबी से मैं एक्सेप्ट करूं और दुगना हासिल करूं, ताकि तेरा चेहरा देख सकूं। खुदावंद, बड़ी बरकतें हम सबको माला माल कर, क्योंकि तू बरकतें देने से कासिर नहीं, तू बरकतें देने के लिए राजी है खुदावंद। और हमें इस्तेमाल कर, अपने बड़े जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर, अपनी कलीसिया के लिए हमें खड़ा कर और हमें इस्तेमाल कर। और तू ऐसा करने के लिए रेडी है, और खुदावंद हम भी रेडी हैं, खुदावंद हम भी रेडी हैं। शालोम शालोम शालोम। लेट पीस रूल ओवर आवर लाइव्स, और जहां भी आप जाएं ये पीस लेके जाएं, क्योंकि अगर आप पीस ढूंढते हैं तो फिर आप कोई बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि पीस तो सिर्फ यीशु में ही है। हमें उसने बोला है कि जहां पे पीस नहीं है, और कहां पे है पीस नहीं, जहां लड़ाई झगड़ा है, वहां जाएं, वहां कूद पड़े, आग में कूद पड़े और झपट ले उनको जो कि आग में हैं। And I am doing that. I'm trying my best. I may fail at times. I do fail. लेकिन मैं रोज खड़ी होती हूँ और मैं रोज कोशिश करती हूँ इस जिस्म के खिलाफ, इस शैतान के खिलाफ। शैतान पे जंग जीतना आसान है, इस जिस्म से जंग लड़ना बहुत मुश्किल। लेकिन हमारा यीशु इस जिस्म पे जंग लड़के कामयाब हुआ, इसलिए हमें ये उम्मीद है कि हम भी फतेहमंद होंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। टिल नेक्स्ट टाइम, टिल वी मीट, एंड दैट इज मंडे। मंडे को हम परस्तिश करते हैं, तो आप आए जरूर, परस्तिश में शामिल हो। कोई मैसेज शेयरिंग नहीं होती, सिर्फ परस्तिश होती है, क्योंकि खुदावंद परस्तिश पे अपना तख्त लगाता है। तो हम मंडे के दिन परस्तिश करते हैं अपने यहोवा पाक की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।